Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू मस्ट बी कम्प्लीटली फाइन. आप सभी एकदम अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे. वेलकम टू द चैनल ग्लीमिंग ग्रामर. If you are new and watching this video first time, so I request you to kindly subscribe the channel. And yes, don't forget to hit the bell icon so that you will get all the notifications instantly. So, my dear friends, here at Gleaming Grammar platform, we clear your concept and we also enhance your reading and comprehending skills so that you can do your best in your examination. ताकि आप अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट अटैम्प्ट कर सकें. So let's start today's session. Today it is our class 6th of close test, right? यानी कि हम पहले 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. We have completed 5 classes and this is gonna be our class number 6. एंड हम क्लोज टेस्ट की एक सीरीज़ कर रहे हैं विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जामिनेशन. तो अगर अभी तक आपने 5 प्रीवियस क्लासेस नहीं वॉच की हैं, आई सजेस्ट कि आप वो पहले 5 वीडियोस ज़रूर वॉच करें बिकॉज देयर वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिटेल. ओके, सो डोंट मिस टू वॉच दोज प्रीवियस 5 क्लासेस. ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन with a motivational thought. So it says, optimism is the faith that leads to achievement. So basically, the hope, or we can say the asha which we have, it is the faith that can lead you towards achievement, right? जो आपको success दिला सकता है, right? So have faith in yourself, be positive, and I'm damn sure that with your dedication and with your persistence, this time you can definitely crack the examination. All right, so let's start today's close test. I hope you all are ready. I'm sure about that. All right, so let's start. If you are new and watching this close test first time or this type of exercise, तो मैं आपको बताना चाहूँगी that close test is basically a kind of a passage जिसमें कुछ blanks दिए जाते हैं. As you can see it on the screen, इट्स अ पैसेज जिसमें कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं एंड यू आर सपोज टू फिल दीज ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और आपको उसमें से जो सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सूटेबल, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन ऑप्शन लगता है, आपको उस ब्लैंक में फिल करना होता है. ऑल राइट, टू कंप्लीट दिस पैसेज. So my dear friends, as you know that previous few videos were given by 5 blanks, so I thought ki let's do more practice because we know that practice makes a man perfect. तो आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी close test है which is available here, it has 10 blanks. यानी कि आज हम just double practice करने वाले हैं. All right, so keep on watching the video till end. And you know that the most important thing about close test एंड इवन इफ़ इट इज़ कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीड करना सो दैट वी डेवलप अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैसेज. क्योंकि कुछ जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो आपकी बेसिक नॉलेज होती है उसके अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं. राइट, सो लेट्स स्टार्ट स्किमिंग, यानी कि क्विकली हम इस पैसेज को रीड कर सकते हैं. राइट, यू कैन ऑल्सो पॉज द वीडियो इफ़ यू नीड मोर टाइम. So let's start. Childhood is a time when there are dash responsibilities to make life difficult. If a child dash good parents, he is fed, looked dash and loved. Whatever he may do, it is improbable that he will ever again in his life be given so much dash having to do anything dash return. In addition, life is always dash new things to the child. A child finds dash in playing in the rain or in the snow. His first visit to the seaside is dash adventure. But a child has his pains. He is not free to do as he wishes. He is dash being told not to do things, or he is being, again यहाँ पे he missing है, is being dash for wrongdoing.
his life is therefore not perfectly happy. Okay, so we understood that the passage is talking about a child, यानी कि एक बच्चे की बात हो रही है और बच्चे के साथ उसका जो चाइल्डहुड है यानी कि जो बचपन है वो कम्प्लीटली एसोसिएटेड रहता है, राइट. सो इस पैसेज में हमने स्किम किया, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई डेवलप. हमें पता चला कि द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट चाइल्ड एंड चाइल्डहुड, राइट. So let's start solving the questions, right? As I always say that go for elimination. If you feel that few options, definitely दो options तो are completely out of the box जो आप बहुत ही easily eliminate कर सकते हैं. So eliminate those options, don't waste your time and try to reach to the correct answer as soon as possible, because again you have to manage the time. So let's see. Childhood is a time when there are dash responsibilities to make life difficult. So we all know that childhood हमारा जो बचपन है, it is called the best period of life. हम उसे अपने जीवन का सबसे बेस्ट पीरियड मानते हैं, right? There is childhood, then adolescence and adulthood, right? Old age. लेकिन childhood सबसे बेस्ट पीरियड कहा जाता है. Why? Because there are several reasons. The best thing is no responsibilities, right? No more stress, no more tension. So basically the first statement is talking about the same thing. Childhood is a time when there are dash responsibilities. Now see the options. Many responsibilities, little responsibilities, few responsibilities या more responsibilities. So as I told you कि देखो basic understanding हमें read करके पता चल गया कि childhood में हमारे पास कोई भी जिम्मेदारी responsibility नहीं होती हैं, तो हम many और more के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते. तो हम A एज वेल एज डी को एलिमिनेट कर देंगे अपनी लिस्ट से. क्लियर? ये तो आप भी जानते हैं, राइट, कि हमारे पास चाइल्डहुड में बचपन में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती है, और होती भी हैं तो दे आर वेरी लाइक वेरी फ्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओह, आई गिव द आंसर. सो आंसर इज़ हियर फ्यू बाय द वे, बट आई विल टेल यू कि हम फ्यू के साथ क्यों जाएंगे. ऑप्शन नंबर सी हमने क्यों चूज़ किया. वाई नॉट लिटिल. सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, राइट, मेरी एक वीडियो है विच इज़ अपलोडेड ऑन द चैनल जिसका टाइटल है डिटर्मिनर्स. आई विल सजेस्ट यू कि जस्ट वॉच दैट वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि लिटिल, फ्यू, मैनी, मच, मोर बहुत डिटेल में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, राइट. तो आप वो वीडियो अगर वॉच करेंगे इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन एग्जामिनेशन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात हुई है, राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि प्लूरल फॉर्म में बात हुई है. तो जो भी प्लूरल फॉर्म होती हैं, राइट, जैसे कि इसकी हम ऊपर ही देखते हैं वर्ड्स, तो यानी कि काउंटेबल है, तभी तो हमने प्लूरल फॉर्म किया, राइट. और जो हम लिटिल यूज़ करते हैं, लिटिल वाटर, लाइक लिटिल मिल्क, तो हम वो लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ, राइट. लिटिल जो है फ्यू दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं, राइट, डिटरमाइन कर रहे हैं नाउन को, लेकिन लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ. और यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि प्लूरल फॉर्म, दैट मीन्स हम लिटिल का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि फ्यू हम यूज़ करते हैं विद काउंटेबल नाउन्स, लाइक एज आई सेड लिटिल वाटर इन द जग एंड फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास. तो यहाँ पर हम ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, लिटिल को भी हम एलिमिनेट करेंगे एंड वी विल गो विद ऑप्शन नंबर सी. आई होप आई मेड द थिंग्स क्लियर हियर. सो लेट्स मूव अहेड. इफ अ चाइल्ड डैश गुड पेरेंट्स, if a child dash good parents, so let's see the option has, had, have, is, have you ever heard is के साथ, as I told you, हम अगर पैसिव वॉइस होगा तो is एम आर के साथ वी थर्ड आती है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड इफ इट इज़ कॉन्टीन्यूस तो आई एन जी फॉर्म आना चाहिए था, इज़ हैविंग. तो ये तो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, तो हम ऑप्शन डी को फटाफट से एलिमिनेट कर देंगे. डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड माई डियर फ्रेंड्स हियर. ओके, नाउ यू आर लेफ्ट विद हैज़, हैव एंड हैड. अब यहाँ पे देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है, इफ़ अ चाइल्ड की बात हुई यानी कि बच्चा एक है. चिल्ड्रन होता तो हम हैव यूज़ कर सकते थे, बट हियर इट इज़ अ चाइल्ड, तो वी नो कि वी यूज़ हैव विद प्लूरल सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हैव भी नहीं आएगा. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पर तो हैज़ भी आ सकता है और हैड भी आ सकता है, ग्रामेटिकली तो दोनों करेक्ट हैं, राइट. यस, बट अगेन दिस इज़ वॉट योर एग्जामिनर इज़ चेकिंग. आपकी जनरल इंग्लिश वो चेक करेगा, राइट. तो आपको देखना है कि जो पूरा पैसेज है, जो आपका पैसेज है वो किस में दिया है, पास्ट टेंस में या प्रेजेंट टेंस में दिया गया है. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज. चाइल्डहुड इज़ प्रेजेंट, ही इज़ फेड. यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, बट अगेन इट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, पैसिव वॉइस में दिया हुआ है.
it is improbable, again present indefinite. Okay, then life is always, again present. A child finds, present indefinite. So you can see, you know, everywhere it is present tense. और had हम कब लगाते हैं? पास्ट में, राइट. सो दैट इज़ द रीज़न कि हम हैड के साथ नहीं जाएंगे. आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, अल्फा हैज़. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. सो लेट्स मूव अहेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3. ट्राई टू सॉल्व, यू नो, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, और अपना स्कोर हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट वी कैन ऑल्सो वॉच योर प्रोग्रेस. ही इज़, सो इफ़ अ चाइल्ड हैज़ गुड पेरेंट्स, यानी कि अगर बच्चे के पास, यू नो, अच्छे पेरेंट्स होते हैं, सो द चाइल्ड ही इज़ फेड, उसको, यू नो, फीड कराया जाता है, खाना खिलाया जाता है. लुक्ड डैश एंड लव्ड. ओके, तो उसका लुक्ड क्या किया जाता है? लुक्ड अप, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड अराउंड एंड लुक्ड एट. सो लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब. ओके, फ्रेजल वर्ब है ये. तो जैसे कि अगर मैं लुक अप की बात करूँ, तो लुक अप मीन्स, यू नो, लुक अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखना. लुक आफ्टर का मतलब होता है ध्यान रखना. ओके, लुक आफ्टर मीन्स लाइक आई लुक आफ्टर माई मदर बिकॉज शी इज़ ओल्ड. सो दैट मीन्स कि मैं उनकी देखभाल करती हूँ. लुक आफ्टर. लुक अराउंड मीन्स, यू नो, टू गो एंड सी द सराउंडिंग्स, आसपास चीज़ें देखना, ऑब्जर्व करना. ओके, अराउंड योर हाउस यू कैन से लुक अराउंड. एंड लुक एट का मतलब होता है लुक एट समथिंग. इट मीन्स यू आर केयरफुली रीडिंग समथिंग. ओके, आई एम लुकिंग एट द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इन द न्यूज़ पेपर. ओके, सो दैट मीन्स केयरफुली देखना. तो यहाँ पे आप मुझे बताइए सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चाइल्ड इज़ फेड. ओके, उसको खिलाया पिलाया जाएगा. लुक्ड आफ्टर, उसकी देखभाल की जाएगी. एंड लव्ड, और उसको अफेक्शन भी दिया जाएगा, प्यार भी दिया जाएगा, राइट. इफ़ ही हैज़ गुड पेरेंट्स. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, माय बैड, ऑप्शन नंबर बी, लुक आफ्टर. ओके, देखभाल करना. सो वॉट एवर ही मे डू, यहाँ पे चाइल्ड की ही बात हो रही है, राइट. वॉट एवर ही मे डू, वो कुछ भी करे, इट इज़ इम्प्रोबेबल. सो पहले इसका मीनिंग समझिए. ये एक प्रेफिक्स है. आई थिंक आपने प्रेफिक्स और सफिक्स स्टडी किए होंगे. जब हम कुछ, यू नो, लेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड लगा देते हैं, सो दोज आर कॉल्ड प्रेफिक्स. तो ये प्रेफिक्स है. प्रोबेबल का मीनिंग होता है, यू नो, लाइकली, ये ऐसा हो सकता है. ओके, लाइक इफ आई से, यू नो, this type of passage you might get in the exam, most probably, मतलब ऐसा हो सकता है according to my, you know, conjecture. यहाँ पे improbable का meaning just opposite है कि ऐसा नहीं होगा, right. So it is improbable that he will ever again in his life, यानी कि जो बच्चा है आपने लाइफ में आगे कभी भी, लाइफ बी गिवन सो मच डैश, इतना सब कुछ उसे मिले, डैश हैविंग टू डू एनीथिंग. तो यहाँ पे क्या आएगा? विद हैविंग टू डू एनीथिंग, अलॉन्ग हैविंग टू डू एनीथिंग, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग, या टुगेदर हैविंग टू डू एनीथिंग. सो यू कैन सी हियर, यू नो, हमें यहाँ पे कुछ सेंस अगर आप समझ पा रहे हैं, सो इट इज़ सेइंग कि बिना कुछ करे ही, यू नो, बच्चे को ये सब मिल जाता है. तो इट विल बी विदाउट डूइंग, विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग. ओके, और ये इस तरीके से भी हो सकता था, दैट विदाउट डूइंग एनीथिंग. ओके, सो वी विल एलिमिनेट ऑप्शन ए, बी, ओके, एज वेल एज डी. आवर करेक्ट आंसर विल बी विदाउट हैविंग टू डू एनीथिंग. तो आपको भी पता है कि बीइंग अ चाइल्ड, हम सब बच्चे रहे हैं. बीइंग अ चाइल्ड, डू वी डू एनीथिंग? नो. ये सारी जो चीज़ें हैं जो पैसेज में कही गई हैं, यानी कि गुड फूड, गुड केयर एंड, यू नो, बीइंग लव्ड, ये सब हमें विदाउट डूइंग एनीथिंग मिलता है, राइट. बिकॉज वी वर चाइल्ड, हम बच्चे थे, इसीलिए हम सबको मिलता है, राइट. लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. I know today's passage is a bit, you know, standardized, but ये important है for your preparation. So we will again go from here that a child, यहाँ पे a child, he means a child. Okay, so that he will ever again in his life be given so much, इतना सब कुछ उसको मिलेगा, without having to do anything, बिना कुछ किए, dash return, फॉर रिटर्न, इन रिटर्न, बिफोर रिटर्न, या ऑन रिटर्न. सो अगेन अगर आप थोड़ा सा इसको ट्रांसलेट भी करेंगे, देन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर. इन रिटर्न, हम कहते हैं ना, बदले में हमने कुछ नहीं किया. ओके, लाइक शी हेल्प्ड मी, और यू कैन से माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, एंड इन रिटर्न ही डिड नॉट आस्क एनीथिंग, यू नो, फ्रॉम मी. उसने मुझसे बदले में कुछ नहीं मांगा. सो इट इज़ इन रिटर्न. सो वी विल गो विद ऑप्शन नंबर बी, इन रिटर्न. नाउ लेट्स मूव अहेड. इन एडिशन, अब ये यहाँ पे फुल स्टॉप हो चुका है, अब आगे की बात हो रही है, यानी कि इन एडिशन, उसके साथ, इसके अलावा भी बच्चे को क्या मिलता है? इन एडिशन, लाइफ इज़ ऑलवेज डैश न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड. इन एडिशन यानी कि बिसाइड्स दैट, उसके अलावा जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो भी बच्चे को डैश थिंग्स
देती है, राइट. आई जस्ट स्पोक द आंसर. सो डोनेटिंग, हम नाउ वी विल सी द you can say the accuracy or the relevancy, basically the relevancy of the words. okay, हम relevant words कैसे pick करते हैं. यहाँ पे देखिए, life is always donating new things to the child. we were also child, right. लाइफ जो है वो क्या डोनेट करती है. डोनेट तो ये वर्ड ही बिल्कुल इनकरेक्ट है. इट इज़ कम्प्लीटली इररेलिवेंट हेयर. डोनेट हम करते हैं बेसिकली वी आर गिविंग समथिंग टू द नीडी वन. ओके, तो लाइफ के अकॉर्डिंग हम नीडी वन नहीं है, राइट. सो डोनेट इज़ कम्प्लीटली इनअप्रोप्रिएट. टेकिंग, लाइफ हमें हमसे लेती है या हमें देती है. डेफिनेटली लाइफ गिव्स अस. आपने जर्नली भी सेंटेंस रीड किए होंगे दैट लाइफ गिव्स अस एक्सपीरियंस, लाइफ गिव्स अस सो मैनी थिंग्स, राइट. तो टेक नहीं होगा, लाइफ गिव्स. तो हमारा ऑप्शन ए और बी बिल्कुल भी रेलिवेंट और सूटेबल नहीं है. डिस्प्लेइंग एंड प्रेजेंटिंग अभी हम होल्ड करेंगे. मीनवाइल यू जस्ट एलिमिनेट ए एज वेल एज बी ऑप्शन. नाउ सी, लाइफ इज़ डिस्प्लेइंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड. एक बच्चे को जो लाइफ है वो दिखाती है सब कुछ. लेकिन यहाँ पे अगर होता शो तो ज़्यादा बेटर था. डिस्प्ले का अगेन मैं बताती हूँ कि इंग्लिश द सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स मैटर्स अ लॉट. ओके, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. अब यहाँ पे क्योंकि न्यू थिंग्स है तो जनरली हम न्यू थिंग्स के साथ यूज़ करेंगे प्रेजेंट. ओके, सो लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग. लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड. ओके, आपको पता होगा कि हम प्रेजेंट गिफ्ट को भी कहते हैं, राइट. और यहाँ पे न्यू थिंग्स की बात भी हो रही है. सो दैट्स वाई वी विल गो विद ऑप्शन नंबर डी. लाइफ इज़ ऑलवेज प्रेजेंटिंग न्यू थिंग्स टू द चाइल्ड, यानी कि ज़िंदगी भी बच्चे को कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट करती रहती है. Let's move ahead and see the blank number 7. I hope you all are going with me और आपके maximum जो questions हैं वो correct हो रहे हैं. A child finds dash in playing in the rain or in the snow. तो जो एक बच्चा है the child, okay, he finds dash. उसको क्या मिलता है when he plays in the rain or in the snow? पेन मिलेगा उसको, प्रेशर मिलेगा. इजी स्टार्टिंग आप मुझे बताइए. पैसेज में कहीं पर ऐसी बात हो रही है क्योंकि जनरली इट इज़ सेड अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट कि कुछ बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं स्टडी के, राइट. आपने सुना भी होगा स्टडी प्रेशर है. सो ऑफकोर्स वी आर नॉट टॉकिंग हेयर अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन. एक जनरल सेंस में बात हो रही है बच्चे की, राइट. सो हेयर इट विल नॉट बी प्रेशर एट ऑल. ओके, बच्चा अगर खेल रहा है तो उसको कैसा प्रेशर. डेफिनेटली ही इज़ प्लेइंग इन द रेन. ओके, वो बिल्कुल कॉम्पिटिशन में नहीं प्ले कर रहा है. ही इज़ नॉट रेडी टू विन. एक जनरल सेंस में बात हो रही है दैट ही इन्जॉयज द रेन और इवन ही कैन इन्जॉय द स्नो एज वेल. तो प्रेशर एज वेल एज पेन भी उसको नहीं मिलेगा. प्लेजर, येस, डेफिनेटली ही कैन गेट प्लेजर. एंड प्रोग्रेस, उसको प्रोग्रेस भी नहीं मिलेगी, राइट. सो अवर ऑप्शन ए एज वेल एज बी. ओके, प्रेशर एंड पेन ये तो दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं, राइट. एंड यू कैन सी हियर दैट अ चाइल्ड फाइंड्स डैश इन प्लेइंग इन द रेन और इन द स्नो. तो आपने भी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द चिल्ड्रन अराउंड योर हाउस और एट योर हाउस कि जब भी वो मस्ती करते हैं व्हेन एवर दे प्ले एनी सॉर्ट ऑफ गेम, सो दे दे फील वेरी एक्साइटेड. दे फील लाइक दे आर ऑन द 9th क्लाउड. उनको रोकना पड़ता है, राइट. अदरवाइज दे कैन कीप ऑन प्लेइंग द होल डे. तो डेफिनेटली वो एक्टिविटीज़ बच्चों को क्या देती हैं, प्लेजर देती हैं, खुशी देती हैं. So we will eliminate option number D as well and our correct answer will be pleasure, खुशी. So a child finds, child को क्या मिलती है, क्या वो find करता है, pleasure, खुशी, happiness in playing in the rain or in the snow. His first visit to the seaside is dash adventure, यानी कि when the child visit to the seaside, जब भी वो सी शोर पे जाता है किसी भी समुद्र के किनारे पर जाता है तो उसका वो जो एक्सपीरियंस होता है, राइट, दैट इज़ डैश एडवेंचर. वो कैसा एडवेंचर होता है उसका, ग्लूमी एडवेंचर होता है. एडवेंचर जो होता है कि दीज आर सम थ्रिलिंग एक्सपीरियंस जिससे आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है, थ्रिल. ओके, सो हाउ इट कैन बी ग्लूमी एडवेंचर. ग्लूमी का मीनिंग मैंने आपको कई बार बताया है, सेवरल टाइम्स, दैट ग्लूमी मीन्स सैड. ओके, ग्लूमी मीन्स सैड. So of course gloomy adventure नहीं होगा. If a child is visiting seaside, so the adventure will not at all be gloomy. Marvelous, yes it can be. Matter, no. Magic, no. So I think A and C should be eliminated at once, gloomy or matter. Now you are left with marvelous and magic. हो सकता है आप में से कुछ कैंडिडेट्स को, कुछ फ्रेंड्स को मैजिक भी करेक्ट लग रहा हो यहाँ पे, या फिर उन्होंने मैजिक ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया हो. बट लेट मी टेल यू कि जो मैजिक है वो नाउन है. ओके, मैजिक इट इज़ नाउन और एडवेंचर भी नाउन है. सो वी कैन नॉट यूज़ टू नाउन. हमें एडजेक्टिव से पहले एक वर्ड चाहिए जो नाउन को क्या करे, मॉडिफाई करे.
क्लियर, क्योंकि कोई कॉमा तो नहीं है यहाँ पे, सो दैट वी कैन यूज़ टू नाउन्स, राइट. तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, and here the adjective is marvelous. Marvelous means, like very exciting, something which gives you so much, pleasure, surprise. Okay, so it is his first visit to the seaside is marvelous adventure. बच्चे के लिए वो एक बहुत ही surprising adventure होता है. So we will go with option number B. Let me give you one more information. अगर यहाँ पर magical होता, okay, तो एटलीस्ट 40-50% करेक्ट हो सकता था, बट अगेन द मोस्ट अप्रोप्रिएट उस कंडीशन में भी मार्वलस ही रहता. बट अभी मैजिक है तो ये तो कम्प्लीटली इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज़ नाउन. नाउ वी आर गोना सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ दिस क्लोज टेस्ट. सो सी हियर, बट अ चाइल्ड हैज़ हिज पेन्स, यानी कि बच्चे की अपनी भी सफरिंग्स होती हैं. अब उसकी सफरिंग्स क्या होती हैं, लेट्स सी. ही इज़ नॉट फ्री टू डू एज ही विशेज़, यानी कि वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू, जो भी वो चाहता है करना, ही इज़ नॉट अलाउड टू डू ऑल दोज थिंग्स. तो डेफिनेटली देर आर सम रेस्ट्रिक्शंस, बच्चों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं. ओके, सो दैट दे विल बी ट्रेन कि नॉट टू डू दिस एंड डू दैट. ओके, सो ही इज़ नॉट फ्री टू डू एज ही विशेज़. ही इज़ डैश बीइंग टोल्ड नॉट टू डू थिंग्स. ओके, तो उसको डैश बताया जाता है कि क्या नहीं करना है. कॉन्टीन्यूअली, लगातार बताया जाता है, केयरफुली बताया जाता है, चीयरफुली, खुश होकर बताया जाता है, या क्लीनली बताया जाता है. जस्ट सी द ऑप्शन नंबर डी, क्लीनली. क्लीनली सफाई से क्यों बताया जाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ कम्प्लीटली इनकरेक्ट. ओके, एंड यू कैन सी हियर दैट बच्चों को हमें बार बार बताना पड़ता है, राइट. दैट्स वाई आई सेड कि पैसेज को रीड करके बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी इज़ रियली असेंशियल. सो एज यू नो कि इफ़ यू आर टेलिंग एनी चाइल्ड anything to do once, so they might not listen you, so we are supposed to tell them sometime twice, thrice. Okay, so that they will not do or do whatever we want, right. So हमें उन्हें बार बार बताना पड़ता है. that's why we will go with option number A. we will eliminate option C as well as B. so continually, यानी कि बार बार लगातार बच्चों को बताना पड़ता है. he is, यानी कि जो बच्चा है, he is continually being told, उसको बताया जाता है नॉट टू डू द थिंग्स और इज़ बीइंग डैश, और अगर बताया जाता है और इज़ बीइंग डैश फॉर रॉन्ग डूइंग्स, और अगर वो कुछ गलत करता है तो क्या किया जाता है, रिवॉर्डेड. हैव यू एवर सीन दैट एनी चाइल्ड हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, यू वर ऑल्सो अ चाइल्ड एंड यू वर रिवॉर्डेड बाय योर पेरेंट्स. आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला. नो, यू मस्ट हैव रिसीव्ड अ स्लीपर, एक फ्लाइंग चप्पल आपको रिसीव हुई होगी, माइट बी बिकॉज यू मस्ट बी द 90 kids. So definitely rewarded is not the correct answer. Punished, yes, wrongdoings के लिए punishment मिलता है. Pleased, incorrect. Respected, again completely incorrect, right. So we will eliminate option A as well as C and D, and our correct answer is punished. Okay, so here it is, he is continually being told not to do the things, or he is being punished for wrongdoing. His life is therefore not perfectly happy. तो according to the passage, जो बच्चा है वो भी अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परफेक्टली हैप्पी नहीं है. ही इज़ ऑल्सो सैड बिकॉज उसकी अपनी कुछ सफरिंग्स हैं. ओके, एंड द सफरिंग्स आर हेयर डिस्कस्ड कि उसकी क्या सफरिंग्स हैं. बट स्टिल आई वुड से दैट चाइल्डहुड इज़ द बेस्ट पीरियड ऑफ आवर लाइफ वेयर देयर इज़ नो मोर स्ट्रेस, नो मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ऑलराइट, सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट द पैसेज. आपने काफ़ी अच्छा स्कोर किया होगा बिकॉज इट इज़ द 6th वीडियो, और हम कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट. एंड एज यू नो दैट इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग द प्रैक्टिस, आई एम डैम श्योर कि क्लोज टेस्ट भी बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे. जस्ट नीड टू बी परसिस्टेंस. ओके, थोड़ा लगातार वर्क करते रहिए. डोंट स्किप द वीडियोज़ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, राइट, दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन एनी काइंड ऑफ banking examination, because it is general English, it is helpful in every type of examination. Here at the end of the video I have given you the links, the link of the playlist as well as the link of the previous close test. Kindly watch that. Thank you so much for watching the video and have a nice day. Don't forget to share and like the video. Thank you.